ये रिकॉर्ड। नितिन लकी। Started recording. It started recording. हाँ ओके ओके And one more thing, अच्छा, guys, आपने this स्टार्ट कर is the दिया, first ठीक है session, ठीक है। so I'm going to record it and going to publish over the YouTube. So in this session, please don't show any company-related stuff. Okay, from second session onwards, it will not be published over the YouTube. So as of now, this is for the demo purpose for the rest of the people. So just you try to maintain some dignity. No need to expose anything. If you would like to expose, let me know. I will stop recording and then you can show to them. Okay. ओके फाइन ओके लकी No, okay. Anyways, this is my office laptop, so I can't, expose anything here. ओके फाइन Yeah. So, नितिन, या टेल मी चलो अपन इसमें यहाँ से एक मिनट, जस्ट अ मोमेंट। मैंने कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस रेडी किए थे। ओके फाइन यार ये हैंग क्यों हो गया? हाँ। हम्म तो अपन उस पे डिस्कस करते हैं। तो एक मोस्टली बेसिक जो इंटरव्यू क्वेश्चंस आते हैं, वो आता है सबसे पहले अवेलेबिलिटी सेट और अवेलेबिलिटी जोन पे। या ओके फाइन ओके, तो या आप मुझे बताइए पहले, ये आपके हिसाब से आप अवेलेबिलिटी सेट और अवेलेबिलिटी जोन में क्या समझते हैं, इंक्लूडिंग फॉल्ट डोमेन एंड अपडेट डोमेन? okay fine availability set for हम्म example if we spin up any virtual machines we have any downtime any maintenance problem we have to put the virtual machine in availability set if any virtual machine is down or planned or unplanned events happens another virtual machine is available to the end users for example we have two virtual machines in availability set one availability set is हम्म planned or unplanned events are going occurs on the virtual machines the other virtual machine available to the end users. Yeah, one thing. राइट Availability zone is nothing ओके but availability zone is nothing but we we have to spin up virtual machines at different availability zones. Like we have three availability zones. First, we can spin up one virtual machines. We can install application server. The end users connect to the web servers. Sorry, web servers. If any planned or unplanned events occur in the availability zone, complete data center is failure or down, any planned or unplanned events are occurs in completed unavailability to the data centers, the another zone can we can connect to the another availability zone. The same virtual machines available in three availability zones. If two are unavailable, then we have to reach to the third availability ओके। data center. सो Nothing हियर but data अब center मैंने failure we आपके, can, for example data center failure we can use availability zone. okay, understood. For data center failure, availability zone Yeah. is there, and availability set is there when within a single data center if any machine goes down, Goes down, right? for example in any single Hmm. for example in one data centers we have to spin up virtual machines in rack basis in for example in one rack is down we have to हम्म another two racks is available and the virtual machines serve to the end users. ओके। सो Is am I ओके, correct? हाँ, अभी जैसे अब इसमें मेरे को आपको तीन क्वेश्चन बने मेरे को। Yeah. तीन क्वेश्चन क्या है? पहली बात तो अवेलेबिलिटी जोन आपने बोला 1 2 और 3 होता है, ठीक है? Yeah. इधर यू कैन चूज ओनली 2 और 3, आप Yeah. 2 और 3 साथ साथ चूज नहीं कर सकते, Yeah. Yeah. Yes. Yes. करेक्ट? Yeah. क्योंकि Exactly. आपने, राइट, आपने अभी जैसे आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, बट आप यू सेड कि वी कैन गो फॉर अवेलेबिलिटी जोन इन रीजन वाइज वेदर वी कैन एक्सेस फ्रॉम 2 और वी कैन एक्सेस अवेलेबिलिटी जोन 3। नो, Yes. इधर आप 3 चूज कर सकते हो या 2 चूज कर सकते हो, ठीक है? Yeah. 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 तो ये एक पॉइंट आपने ये मार्क किया, ये हो गया अपना। अब सेकंड पॉइंट Okay. अपना ये बनता है अवेलेबिलिटी सेट। अवेलेबिलिटी सेट, अभी जैसे आपने इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन नहीं देना हमको एज ए Okay. इंटरव्यूअर। मैं क्योंकि जैसे मैंने इंटरव्यू लिए हैं तो मुझे पता है मैं इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए बैठा ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास और Okay. क्वेश्चंस हैं। मैं अवेलेबिलिटी सेट और अवेलेबिलिटी जोन से और क्वेश्चन निकालूंगा। तो सबसे पहले तो Okay. आप अवेलेबिलिटी सेट में ये बोलिए कि विद इन सिंगल डेटा सेंटर देयर आर 2 racks, okay? Okay. If any machine go down with any power outage or anything, any update happens, we have another machine for across the across the users to serve Okay. the user, right? ये अवेलेबिलिटी Okay. सेट हुआ अपना। और Okay. अवेलेबिलिटी जोन अपना, ये आपने पूरा सही बताया, आपने कुछ गलत नहीं बताया, बट यू स्ट्रेस्ड इट। Okay. तो आपका अवेलेबिलिटी जोन क्या है अपना? विद इन सिंगल रीजन देयर आर मल्टीपल डेटा सेंटर्स। सपोज Yeah. इफ यू आर इन, you belongs to Hyderabad, right?
सो मैं एक Yeah. हैदराबाद का एग्जांपल लूं तो एक अपना हैदराबाद में कहीं मतलब ये यार मेरे को जगह नहीं पता, एक ओल्ड हैदराबाद पकड़ लो, एक न्यू हैदराबाद पकड़ लो, ठीक है, एक Yeah. डेटा Okay. सेंटर I'm अपना ओल्ड living in हैदराबाद what में, एक city? न्यू हैदराबाद में, अगर हाँ अनफॉर्चुनेटली अपना कोई एक डेटा सेंटर पूरा का पूरा उड़ जाता है तो अपने Okay. पास न्यू हैदराबाद वाला डेटा सेंटर है Yeah. फॉर द यूजर्स। Yeah. ठीक, अभी ये तो इसमें आपका ये पॉइंट है कि आप डोंट स्ट्रेच मच, Okay. क्योंकि उनको टू द पॉइंट आंसर रहने हैं और अपने को और आगे पूछना है। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था जो मतलब एक Okay. 6 या 7 साल के एक्सपीरियंस वाले बंदे से पूछा जाता है। Okay. Fine. अब मुझे आप ये बताइए, कैन वी प्लेस अ मशीन, existing machine within a availability set or not? No, it is not possible to place the existing virtual machine in availability zone. While the creation of virtual No, machines, no, we no. have to. Availability set. The, Yeah, sorry. Yeah, yeah, I know that. हाँ, We cannot keep the existing virtual machines in to the availability set. While creating the virtual machines, we have to choose the availability set and we can keep it. For example, if we compulsory, we have to put the virtual machine in availability zone. Just we have to recreate the virtual machines and select the availability set. right. So, in short, we cannot. But Yeah. there are some PowerShell commands. By using those commands, we can place in existing availability set also. Existing machine in availability set also. Okay. ठीक है, अगर वो बोले आपको अगर है कि आप मैन्युअली प्लेस कर सकते हो या नहीं कर सकते, तो कहना नहीं। No. और पावरशेल कमांड वो भी सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट को ही पता है, क्योंकि Okay. माइक्रोसॉफ्ट को जब आप सपोर्ट पे लाओगे तो दे ओनली कैन हेल्प यू टू प्लेस द एग्जिस्टिंग मशीन इन अवेलेबिलिटी सेट Yeah, it is possible यूजिंग to place the कमांड्स। yeah. हाँ, टेल मी Yeah, it बोलिए is बोलिए। possible to using PowerShell command to keep the virtual machines availability set in existing virtual machine. यस 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 इट इज। Okay. बट मैन्युअली यू कैन नॉट, मैन्युअली आइदर यू हैव टू डिलीट द मशीन देन Yeah. कीप इट इन द अवेलेबिलिटी सेट, और अपना मतलब यही एक ऑप्शन है मैन्युअली में, Okay. Fine. क्योंकि व्हेन यू क्रिएट द मशीन इट विल आस्क फॉर अवेलेबिलिटी ऑप्शंस। Okay. ओके, बट इसमें भी आपको ये जो पावरशेल की कमांड्स हैं वो जो माइक्रोसॉफ्ट ही आपको हेल्प कर सकता है उसमें। यू हैव टू सपोर्ट अ रिक्वेस्ट फॉर दैट, Okay. Okay. Fine. Fine. यू हैव टू रेज अ रिक्वेस्ट फ्रॉम पोर्टल, वहां पे अपना हेल्प एंड सपोर्ट रहता है ना, Yeah. वहां से। Okay. Yeah. Okay. I ठीक है, get it. तो ये अब आप मुझे एबिलिटी सेट में अपडेट डोमेन और फॉल्ट डोमेन बताइए। Update fault domain is nothing but is there any switch offs, any power outages, any storage problem occurs in complete underlying infrastructure, underlying physical server. We can keep the virtual machines in fault domain and update domain. Yeah. जैसे अपन एबिलिटी सेट क्रिएट करते हैं बाय डिफॉल्ट फॉल्ट डोमेन एंड अपडेट डोमेन विल कम फॉर श्योर, राइट? Yeah. Yeah. Once again, तो मुझे इनका max. यूज बताइए कि Yeah, बताइए बताइए. Okay. Okay. Fine. You can नो नो tell me. हाँ, मैक्सिमम यू कैन या मैक्सिमम यू कैन इंक्रीज इट, 2 to 5 फॉल्ट होता है, अपडेट होता है, यू कैन इंक्रीज, बट Okay. बाय डिफॉल्ट 2 और 5 रहता है, वो हम वी Okay. कैन कीप दैट। Okay. Fine. लेकिन मुझे इसका यूज बताइए, ये फॉल्ट डोमेन और अपडेट डोमेन यूज क्यों करते हैं? Fault domain and update domain. Any for example, any outages like power outages or cooling problem in underlying physical server, we have to put the virtual machines in a rack wise basis now. We have to करेक्ट, maintenance बट it infrastructure complete underlying physical server. We have to patch any event, any service pack. We have to put the virtual machines in a fault domain. नो नो, ये आपका जो आपने पैच बताया, मेंटेनेंस बताया, इट विल कम इन अपडेट डोमेन, डोंट बी कंफ्यूज। Okay. Yeah. ये आपका जो मेंटेनेंस, पैच, रिबूट, एनी पावर आउटेज, ये होता है आपका अपडेट डोमेन। Okay. और नहीं सॉरी, नॉट दिस पावर आउटेज। पावर आउटेज सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर होता है जो आएगा आपके Okay. फॉल्ट डोमेन में। आपका मेंटेनेंस और रिबूट, क्योंकि जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है कि जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट से मशीन्स लेते हो, उनके क्या कहते हैं मार्केट प्लेस से मशीन लेते हो, तो Okay. पैचिंग और मेंटेनेंस विल बी टेकन केयर बाय माइक्रोसॉफ्ट। तो Okay. जब भी कोई रैंसमवेयर अटैक हुआ या कुछ भी वीनेट में कुछ अटैक होता है तो उनको सिक्योरिटी पैच रिलीज करने पड़ते हैं।
Okay, राइट, fine. Yeah. क्योंकि जस्ट टू प्रोटेक्ट द सर्वर्स। तो फिर वो Okay. जब उनको वो जो रिलीज करना पड़ता है तो ऑब्वियसली दैट सर्वर विल गो फॉर अ रीबूट। Yeah. तो उस रीबूट के लिए वी यूज अपडेट डोमेन, Okay. क्योंकि एक हमारा अपडेट डोमेन में जिसमें हमारे अलग अलग प्ले, जैसे 1 2 3 एक रैक है, 1 2 3 स्लॉट्स है, दूसरी रैक में भी 1 2 3 स्लॉट्स है। पहली रैक Yeah. में पहले स्लॉट में हमने एक मशीन रखी, दूसरी रैक में दूसरे स्लॉट में हमने वही मशीन रखी 1। तो हमारा पहली रैक का अगर वो मेंटेनेंस होता है या रिबूट करते हैं तो पहली रैक का पहला मशीन रिबूट हो जाएगा, वो मतलब एक्सेसिबल नहीं रहेगा यूजर के लिए। Yeah. बट Second machine दूसरी machines रैक में जो availability सेकंड रहती स्लॉट में मशीन रहेगा वो, है. Okay. करेक्ट, वो हमें, और वो प्लेस भी इसी तरीके से करते हैं, दे विल नॉट प्लेस इन अ ऑर्डर, यानी एक ही स्लॉट वन वन स्लॉट में ही रखेंगे, वो रखेंगे 1 में या 3 में, 2 में या 4 में, ऐसे स्लॉट्स में रखते हैं। Okay. क्योंकि वो जो जब मेंटेनेंस होता है तो पूरा एक रैक Okay. का होता है, एक पूरा स्लॉट जाता है, एक पूरा स्लॉट रिबूट होगा, उसका मेंटेनेंस करेंगे, क्योंकि अगर 1 बाय 1 करने लगे तो उनको भी बहुत टाइम होगा, उनको भी बहुत हर चीज उनका Yes. खर्च होगा। Yes. तो दे गो बाय एक पूरा Okay. स्लॉट Fine. लेते हैं, उस स्लॉट में जितना भी मशीन होगा वो रिबूट होगा, और उसमें क्या नाम है वो, जैसे कि आपने बोला ग्रुप ऑफ अंडरलाइंग Okay. हार्डवेयर कहते हैं इसको, जैसे आपने बोला ना लॉजिकल ग्रुप ऑफ Yeah. अंडरलाइंग Okay. हार्डवेयर, ये होता है अपना अपडेट डोमेन। और फॉल्ट डोमेन क्या होता है अपना, फॉल्ट डोमेन हुआ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर तभी होता है जब पावर आउटेज हो, Okay. करेक्ट, ये फॉल्ट डोमेन के लिए होता है अपना। Okay. ओके, तो ये अपना हुआ भैया नितिन भाई, अबिलिटी सेट और अबिलिटी जोन से ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं। Okay. Fine. अब इसी में मैं आपको ये पूछूं, सपोज करो मेरा प्रोडक्शन मशीन है, Yes. प्रोडक्शन मशीन को मेरे को हाईली, आपके एसएलए कितना रहता है एबिलिटी सेट का बताइए। क्या? एसएलए, एबिलिटी सेट का एसएलए कितना प्रोवाइड कराता है एज्योर? जो 99.95. 96। ओके, 96. Okay. और अबिलिटी व्हेन मशीन इज अबिलिटी सेट एंड अबिलिटी जोन आल्सो, तो कितना एसएलए रहेगा? 99.99%. करेक्ट, 99.99%। अब अभी भी 0.1% रह रहा है अपना। Yes. Exactly. प्रोडक्शन मशीन के लिए वी वांट 100%, राइट। Yes. Yeah. अब इस 100% को मुझे क्लाइंट बोलता है कि आई वांट दिस मशीन टू बी हाईली अवेलेबल, Okay. तो मुझे और क्या करना पड़ेगा इसको हाईली अवेलेबल करने के लिए? जस्ट थिंक, आप बताइए मुझे। और ये मेरा अभी प्राइमरी रीजन की बात कर रहा हूँ, मैं अभी सेकेंडरी रीजन में आया भी नहीं हूँ, मेरा Okay. प्राइमरी Fine. रीजन है। उसमें आप बताइए मुझे, मशीन मेरा कभी डाउन होना ही नहीं चाहिए। इफ इन केस कुछ हो भी जाता है तो मेरे को कुछ ना कुछ एक बैकअप होना चाहिए, जिसके लिए मतलब यूजर्स के लिए। तो व्हाट ऑल पॉसिबल वेज वी कैन परफॉर्म ओवर देयर? Yeah, Microsoft give for only availability zone 99.99%. Then we have to 100%. You said Yeah, that. we need to avail it by 100%. Yeah. We can use manage disk in the virtual machine. मैनेज डिस्क, अब सिर्फ मैनेज डिस्क ही यूज होता है नितिन, नो वन गो बाय अनमैनेज डिस्क, क्योंकि अनमैनेज डिस्क के लिए अपन को बनाने पड़ता है स्टोरेज अकाउंट, Yes, yes, जो मालूम है कोई वो. भी क्लाइंट अफोर्ड नहीं, कोई Okay, भी क्लाइंट fine. अफोर्ड नहीं करेगा वो, करेक्ट। Okay. और थोड़ा सा कुछ और, लोड Yeah. बैलेंसर वगैरह, Sorry. लोड बैलेंसर। Yeah. Okay. Load balancer. हम्म, लोड बैलेंसर क्या करेगा? और लोड बैलेंसर अपना लोड डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो फिर जिससे या. अपना मशीन पे लिटल लोड भी नहीं आएगा, और ओके. उसका जो एसएलए रहेगा वो ब्रीच भी नहीं होगा। ओके फाइन. उसके लोड. अलावा इफ वी हैव सेकेंडरी रीजन आल्सो, उसके अलावा सेकेंडरी रीजन भी आ गया तो हम क्या लगा सकते हैं? स्केल सेट. Skill set is there. Good. Skill set is there. Within load balancer you can, but that is within the Azure only. ये एक यस. ही रीजन में बात कर रहा है। अब मैंने बात किया दूसरे रीजन का भी, अब मैं सेकेंडरी रीजन भी ले आया, तो मैं क्या लगाऊं? सेकेंडरी रीजन. हाँ हाँ, प्राइमरी रीजन में ये सब आपने लगा दिया, अब सेकेंडरी रीजन में क्या करेंगे आप? डीआर सुना है ना आपने, डिजास्टर हाँ. रिकवरी? हाँ. डिजास्टर रिकवरी या साइट रिकवरी वी कैन यूज फॉर दैट. हाँ, साइट, राइट, Azure साइट रिकवरी भी यूज कर सकते हैं, बट Azure साइट रिकवरी तब यूज करते हैं जब हमको प्राइमरी यूज में रखना है, सेकेंडरी तब यूज में लाना है जब हमारा प्राइमरी डाउन होता है।
Yes, yes. और Failover जब डिजास्टर happen हुआ रिकवरी तो में, immediately we have to access the secondary reason by disaster recovery पे हो जा सकता है वो. हाँ करेक्ट, तो ये ऐसे करके आपने अपना हाईली अवेलेबल बनाया सिस्टम, Okay, ठीक है, okay, सिस्टम हाईली अवेलेबल बनाया। अब मैं जैसे क्वेश्चन इसमें ये बनता है, फिर ये देखिए जैसे मेरा प्राइमरी रीजन में गया, पूरा सर्किट पूरा चला गया प्राइमरी रीजन में, मेरा okay, पूरा प्राइमरी रीजन डाउन हो गया, सेकेंडरी रीजन को मैंने अप कर लिया फेल ओवर करके, okay, एजियो साइट रिकवरी से अप कर लिया है मैंने, ठीक है। okay, अब मेरा यूजर तो मेरा जो हिट कर रहा था वो प्राइमरी रीजन पे ही हिट कर रहा था ना, सारी रिक्वेस्ट तो वहीं जा रही थी और फिर फेल हो रही हैं। okay. तो Yes, yes. अब ऐसा आपने क्या करना है और क्या प्लेस किया है आपने वहां पे कि जिससे यूजर अब सेकेंडरी रीजन में जाके हिट करे? इसका नाम what से रीजन वाइज आपने लोड बैलेंसर सुना है ना, उसका नाम क्या होता है? Sorry, रीजनल लोड बैलेंसर। regional load रीजनल balancer. लोड बैलेंसर को क्या क्या होता है, उसका नाम, एग्जैक्ट नाम बताइए। Two type of load balancer, external load balancer and internal load balancers. नो नो, दो दीज load आर नॉट, balancer. मैंने आपको, हाँ, देयर आर टू टाइप ऑफ एक्सटर्नल इंटरनल ओनली, बट देयर इज अ ट्रैफिक मैनेजर व्हिच वर्क एज अ लोड बैलेंसर दैट वी यूज रीजन वाइज। Okay, okay, okay. ट्रैफिक ट्रैफिक मैनेजर होता है वो। मैनेजर लेकिन ओके, ट्रैफिक मैनेजर तो इट लोड इज, को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, जो भी वेब सर्वर पे लोड्स आते हैं ना, ट्रैफिक मैनेजर डिस्ट्रीब्यूट द लोड टू द वीएम्स. नहीं नहीं, तो यहाँ पर नो ये नो नो, आप ट्रैफिक, पूछ रहे कि मैं, या मेरा बोलिए. क्वेश्चन ये था कि प्राइमरी में मेरा जितना यूजर्स, मेरा प्राइमरी पूरा डाउन हो गया है, तो रीजन यस, यस. वाइज आप लगाते हो ट्रैफिक मैनेजर बाहर, जो एक ओके, ट्रैफिक मैनेजर दोनों रीजन को संभालता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो यूजर सबसे पहले ओके. ट्रैफिक मैनेजर पे हिट करता है, रिक्वेस्ट जो भी आती है वो ट्रैफिक मैनेजर पे हिट करती है सबसे पहले, यस, 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 या आई नो ओके। दैट. हाँ, यस, फिर वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, देयर आर रूल्स इन ट्रैफिक मैनेजर, यस. राइट। रूल्स क्या होते हैं, मतलब उसकी वो होते हैं, क्या कहते हैं, राउटिंग रूल्स कहते हैं इनको, वेटेड ओके. परफॉर्मेंस, ये होता है सब कुछ, वो उसकी हम बाद में बात करेंगे। लेकिन इन ओके. मतलब इन शॉर्ट अगर बात किया जाए, और तो अगर प्राइमरी अपना गया तो अपन को जो एंड पॉइंट पे राउटिंग हो रही है उसको रिडायरेक्ट करना पड़ेगा सेकेंडरी रीजन में। ओके. तो ट्रैफिक मैनेजर. तो ट्रैफिक मैनेजर, या अगर मेरा प्राइमरी डाउन होता है तो यूजिंग द ट्रैफिक मैनेजर मैं अपना जितना भी राउटिंग है, जितना भी यूजर वहां पे रिक्वेस्ट हिट कर रहा है, आई कैन राउट दैट टू द सेकेंडरी रीजन। ओके, 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 ओके आदित्य. ये अपना हुआ, ये ट्रैफिक मैनेजर के लिए हुआ, यस. ठीक है। अब जब ट्रैफिक मैनेजर की बात कर ही रहे हैं तो फिर उसमें अपने टाइप्स होते हैं, आपको टाइप पता है ना वो वाले, एक्चुअली मैं ट्रैफिक. राउटिंग या बोलिए. एक्चुअली ट्रैफिक मैनेजर देखा हूँ मैं, ओवरव्यू अब मेरा चल रहा है उस पर थोड़ा. ट्रैफिक मैनेजर, एक्सप्रेस रूट, ओके ओके, लोकल गेटवे, सबनेट, ये पूरम पे अभी अभी एक बार तो मैं रिवीजन कर रहा हूँ, दूसरे बार का रिवीजन पार्ट चल रहा है मेरा, अब मैं नेटवर्किंग में हूँ रिवीजन पे. तो एक बार देख ले तो आई कैन कम्प्लीटली आइडिया अबाउट दैट. आप बोल सकते हैं. ठीक है। तो आज के लिए हम ऐसा करते हैं, ट्रैफिक मैनेजर छोड़ते हैं, क्योंकि आप पढ़ोगे फिर मैं आपको बताऊंगा तो इट विल ओपन यस, यू यस. मच, तो या मतलब आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। यस, यस. एक दिन टाइम दे दो, मैं तो कल तक ये मैं पूरा वो पार्ट कंप्लीट कर दूंगा. ठीक है, आप ट्रैफिक मैनेजर, आपको उसमें एक और लिख लीजिए, ट्रैफिक मैनेजर, फ्रंट डोर सर्विस और एप्लीकेशन गेटवे, ये तीन, ओके. ये बहुत अच्छे से कर लेना। और फ्रंट डोर सर्विस और ट्रैफिक मैनेजर और एप्लीकेशन गेटवे, इन तीनों में डिफरेंसेस करना। एक नई वो आई है, क्या कहते हैं, फ्रंट डोर सर्विस, एक साल पहले, जो इट एक्ट एज एप्लीकेशन गेटवे ओनली, बट देयर इज डिफरेंस आल्सो। एप्लीकेशन गेट पे ट्रैफिक मैनेजर है, अपने लोड बैलेंसर. अबे क्या बोले आप, सर्विस है फ्रंट डोर. फ्रंट डोर सर्विस, फ्रंट डोर सर्विस. ओके. हाँ, ये Azure फ्रंट डोर सर्विस आया है। इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द एप्लीकेशन गेटवे, वैफ। ओके, वो ऐसा 11, वो ऐसा ही लेयर 7, ये एप्लीकेशन 7 पे गेटवे. ही, एप्लीकेशन गेटवे भी 7 पे काम करता है, आपका फ्रंट डोर सर्विस भी 7 पे काम करता है, सर्विस. बट ओके. देयर आर, हाँ, दोनों दोनों में डिफरेंस है, बट वो आप पूरा पढ़िएगा, ठीक है, फिर वील डिस्कस ऑन दैट। तो ओके. ये छोड़ते हैं, अभी आप अपन आते हैं इस पे, स्टोरेज पे।
Yeah, okay, tell me. ठीक है, स्टोरेज मतलब कंप्यूटर स्टोरेज अपन पूरा करेंगे अभी। तो Yes, yes. अभी जैसे कंप्यूटर स्टोरेज में तो आपको पता ही है, आपने बताया था पूरा टाइप होते हैं, 4 टाइप के होते हैं, और पेज ब्लॉब 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 आपने मेरे को Yeah. ये ब्लॉब स्टोरेज समझाया था पूरा। ब्लॉब स्टोरेज में तीनों टाइप बताए थे लास्ट टाइम जब मैंने पूछा था आपने, पेज, अपेंड और ब्लॉक ब्लॉब, ठीक है। Yes. अब मुझे आप ये बताइए कि ब्लॉक ब्लॉक टेबल स्टोरेज क्यों यूज करते हैं, फाइल और क्यों, इन तीनों ये स्टोरेज यूज क्यों करते हैं अपन, Actually, व्हेन table व्हेन वी यूज storage. इट? Yeah, हाँ हाँ। we can use table storage. First, we have to structure data. The data is a form of rows and columns. We can go for table storage. For we can store the data in table format. We easily in a fraction of seconds. Yeah, we can retrieve the data quickly. Okay, quickly, but this is structured form of data, but the amount of data is less only. The amount of data is, It's not that much as compared to blob storage. yes, yes. We can only store the only structured data. In the data is a form of rows and columns. We can store the data in table format. But Microsoft, instead of using Mhm. table storage, they can introduce the Cosmos DB, na? Cosmos, Azure Cosmos DB. Yes. हाँ, but ये Azure Cosmos DB it's again a PaaS service. Yeah. तो PaaS सर्विस में ना जाते हुए अगर अपना कोई डेटा है तो अपन को टेबल स्टोरेज यूज ही करना पड़ेगा, इफ Yes. Yes. दे आर नॉट गोइंग फॉर PaaS सर्विसेज। Okay. ये टेबल हुआ क्यू एंड क्यू स्टोरेज। Yeah. Queue storage is nothing but we can use queue storage for incoming and outgoing messages. We can have some components in queue managers and the message in queue format. रिलायबल मैसेजिंग वी कैन से इट। Reliable messaging. That's why हाँ we हाँ, can use queue storage. मैसेजिंग बिटवीन, Messaging between मैसेजिंग mobile मतलब ये application. रिलायबल मैसेजिंग तो बोला, बट मैसेजिंग कैसे, मतलब कोई एग्जांपल दीजिए आप मुझे। Like we can use for mobile applications या WhatsApp applications. We can queue the messages one by one. हम्म, और कोई और सोचिए। इसमें सर्विस बस we have to use for instead of using queue. नहीं नहीं, सर्विस बस इज डिफरेंट। Yeah. अज्योर Okay. सर्विस बस वो अलग ही एक मतलब पैस कंपोनेंट होता है, Okay. स्ट्रक्चर डेटा होता है, और इसमें नो एसक्यूएल डेटा स्टोर होता है, ये याद रखिए। Okay. Okay. क्या बोल रहे हैं अगर मैं जैसे आपको बताऊं, सर्विस द सर्विस व्हिच वी आर यूजिंग इज ए नो एसक्यूएल इन दिस, आप? Okay. नो एसक्यूएल डेटा स्टोर। अगर जैसे हर एक इंटरव्यूअर का मैं आपको बताऊं एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, आप मुझे सही बताओ या ना बताओ मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट आई वांट टू हियर दैट कीवर्ड, राइट। Okay. और यहाँ पे स्टेबल स्टोरेज में वो कीवर्ड है, देयर द सर्विस वी आर यूजिंग इज अ नो एसक्यूएल डेटा स्टोर सर्विस, NoSQL data स्टोर। storage. Store. Okay. तो अगर आप ये बता दोगे तो फिर सामने वाला एटलीस्ट ही थिंक दैट कि हाँ, ही नोज इट बट ही डोंट नो हाउ टू इम्प्लीमेंट इट, मे बी ही वोंट बी हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ हैंड्स ऑन, इसलिए तो वो ऐसे करके सोच सकता है। Okay. Fine. तो आपको मतलब ऐसे मतलब उसका थोड़ा सा उसका माइंड भी रीड करके या थोड़ा सा उसके माइंड पे भी हिट करना है अपने को। Okay. Okay. जैसे अभी मैं आपको, आपने मुझे बोला था कि अगर आपने जैसे रेप्लिकेटेड उसके लिए बोला था, आजूर रिकवरी वार्ड के लिए बोला था, तब मैंने आपको पूछा था कि डिलीट कर सकते हैं क्या नहीं, तो आपने मुझे इमीडिएटली बोला कि सॉफ्ट डिलीट वहां पे आता है, तो आपने Yes. मेरे को वहीं कैच कर लिया था। नाउ आई Okay. नो कि हाँ आपको पता था ये चीज। Okay. Okay. Fine. तो ये हुआ अपना आजूर स्टोरेज। अभी एक और स्टोरेज है, फाइल स्टोरेज। Yeah. व्हाई वी यूज फाइल स्टोरेज, आजूर फाइल स्टोरेज, Yeah, we can share the files through फाइल networking शेयर। part. For example, in organizations, we have to share the files in a group of persons. We have to place the files in a path. We can share and we can receive and we can send the files in file shares. और कैन Networking वी, path. Let's say networking path. टेल मी, गो Yeah, अहेड। networking path. For example, in file shares, we can have file sync services. For example, if you upload any files in file share, we can get the files in on premises through file sync agent. करेक्ट File करेक्ट sync करेक्ट agent can send the files करेक्ट। to the on premises to Azure.
यही मैं सुनना चाह रहा था आपसे कि कैन वी माइग्रेट फाइल फ्रॉम ऑन प्रीमिस आल्सो यूजिंग Azure file storage or not? Yes, we can तो restart वही the server, we that can you said send it. that we can use this Azure file storage to migrate your on premise files also. Okay. हम्म। Yes. और इसमें इसमें जो अपन को जो ट्रांसफर करते हैं फाइल उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट का कौन सा टूल है? uh, AG copy tool. Azure AZ कॉपी जो क्या नाम है माइक्रोसॉफ्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट दैट इज Import सेम क्या export tool है इफ and आई एम AG नॉट copy रॉन्ग? tool भी है. Huge files रहे तो अपन we have to use in huge files. The size of the file is huge. We can use AG copy. Otherwise, we can use import and export tool. ओके सच एज लाइक मतलब जैसे ब्लॉब स्टोरेज के लिए ओके 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 Yeah. सो यू क्लियर मी हियर आल्सो कि Azure जो Azure इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वी कैन यूज इट फॉर लेस अमाउंट ऑफ डेटा. Yes. ओके और इजी कॉपी ठीक है हियर यू क्लियर्ड मी. अब मुझे ये बताइए कि जैसे अपना ये रिडंडेंसी वी सिलेक्ट फॉर Azure स्टोरेज राइट? Yeah. लोकल रिडंडेंसी जियो रिडंडेंसी. Yes. Yes. तो इसमें मुझे लोकल रिडंडेंसी में आप मुझे उसकी रिडंडेंसी बताइए और उसके फीचर्स बताइए कि इफ आई एम चूजिंग फॉर एलआरएस तो व्हाट आर द फीचर ऑफ एलआरएस जो माइक्रोसॉफ्ट देता है और मेरे को उसके इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एडवांटेजेस क्या क्या हैं. मेरे को Yeah. एलआरएस में क्यों जाना चाहिए? Yeah. Actually, LRS is फर्स्ट टेल मी व्हाई शुड आई चूज एलआरएस और व्हेन? yeah, I can tell that. Like LRS is local redundant storage. The data replication in the data is replication in 3 times in a same physical same location in same data center in 3 times. In case of any rack is go down, we have to availability data in another racks. The data is availability करेक्ट. and the storage cost is very less compared to ZRS and GRS. Cost point of view, we can राइट choose राइट. the LRS. दैट Synchronously, मींस data is दैट इज replicated करेक्ट आंसर. synchronously. Yeah, synchronously 3 copies replicated within a single data center, Single data centers. right? Yes, yes, Yeah. और ये मतलब अपने टेस्ट वगैरह के लिए अपन यूज कर सकते हैं एलआरएस. yes, चीपेस्ट होता है और हार्डवेयर फेलियर को प्रोटेक्ट करता है. yes, क्योंकि हार्डवेयर फेलियर इसलिए कैसे प्रोटेक्ट करता है क्योंकि वी हैव 3 copies replicated yes, within a single data center. yes, yes, exactly. And geo redundant, what is the feature for geo redundant? The GeoRenner data is replicated 3 times in primary location and 3 times in secondary locations. If primary location is down or any failure occurs in entire region, we can access the data in secondary region. But in that case, the failure occurs, the failover is happening in primary region, we can access the data in secondary region. The cost of the geo render is high compared to other redundancy models. A best example for banking sector, insurance sector, and financial sectors use for geo render storage. Any cost of the time the data is availability. The crucial data is Right. there now in these sectors we can use for the GRS. And asynchronously replication data in secondary region. asynchronous, हाँ. Yes. बट उसमें एक नोट है यूजर कैन नॉट एक्सेस दैट डेटा. दिस इज फॉर माइक्रोसॉफ्ट बेनिफिट ओनली. Yes. Yes. अगर कुछ आपको डिजास्टर होता है then only Microsoft will replicate that data Yes. for Yes. you. Microsoft initiate the failover and we can access the data in secondary region. No, Microsoft will not initiate the failover. You'll have to do it. Yeah. Sorry. We have Failover सब to, कुछ yeah. ये. हाँ. तो ये Microsoft कुछ नहीं करेगा इसमें. जियो रिडंडेंट में यही है कि 6 copies रहता है अपने पास रेप्लिकेटेड. 3 प्राइमरी में रहता है, 3 सेकेंडरी Like में रहता है. LRS method, but दो primary एक secondary रहता same. हाँ. GRS इसलिए that's why it's जियो रिडंडेंट क्योंकि प्राइमरी सेकेंडरी आ गया तो जियो रिडंडेंट हो गया. Yes. Yes. Exactly. हाँ. बट अब मुझे टाइप्स ऑफ सर्वर बताइए फॉर LRS एंड GRS के लिए. Which type of server I can go for LRS and which type of for GRS? LRS we can servers. Yeah. LRS we can use हाँ, for servers. Or sorry, environment. You can tell me environment okay. also. LRS we can use mid-end servers.
which one Sorry. which one you said? मीन्स आप बता रहे कि मेरे को सर्वर्स के नेम जो कॉन्फ़िगरेशंस कितना नहीं नहीं स्पेस नहीं लेने का है वो बता रहे, समझ में नहीं। नहीं नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि मतलब मुझे एनवायरनमेंट बताइए, जैसे एनवायरनमेंट होते हैं ना, हिप्पा, पीसीआई, कंप्लायंस, prod, नॉन prod, टेस्ट, यूएटी, या ओके ऐसा ओके ऐसा। हाँ। या हम्म, LRS we can use for development side and testing side. We have to create servers in LRS. करेक्ट। LRS in production based servers we have to use for GRS. Like any critical applications in that virtual machines we have to keep in a GRS. ओके। तो नहीं आप एक ये और मैं बताओ, ये एक्सप्लेन नितिन भाई करो एक मेरे को। फीडबैक दूंगा। सॉरी, आप एक्सप्लेन करिए इसके सॉरी। बारे में, मेरे को उतना जानकारी नहीं है। हाँ, इन मैं इससे पहले मैं आपको एक फीडबैक दूंगा। आपको मुझसे देखो ज्यादा ही एक्सपीरियंस है, तो ऑब्वियसली यू वुड बी नोइंग हाउ टू टेक द इंटरव्यू और हाउ टू गिव द इंटरव्यू। बट जैसे मैंने आपको एक सवाल पूछा था अभी जैसे, और आपको समझ में नहीं आया, तो यस डोंट ट्राई टू एक्सप्लेन इट इफ यू डिडंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। ओके आप ट्राई मत करिए, आप उनसे पूछिए कैन यू प्लीज एलेबरेट इट, आप मुझे समझाएंगे ओके कि आप ओके फाइन पूछना क्या चाहते हो मुझसे। कभी कभी क्योंकि फिर जैसे अपने को थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहता है ना, तो अपन अटक जाते हैं, फिर अपन सोचते हैं क्या मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ, राइट। या तो ओके उसमें जस्ट वी कैन उसमें आस्क पंगा हो जाता है, उसमें फिर यू अपन प्लीज बोलते रहते, एलैबोरेट दैट। ओके फाइन या कैन यू प्लीज एलेबरेट इट बिकॉज आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन प्रॉपरली। सो इसमें ओके इंटरव्यूअर भी ऑफेंड नहीं होता और अपन को भी थोड़ा क्लियर पिक्चर मिल जाता है। ओके फाइन हाँ। या तो ये आपने सही बताया, एलआरएस मतलब पूरा डेवलपमेंट यूएटी टेस्ट के लिए यूज होता है, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ जब भी अपन क्लाइंट को कोई सोल्यूशन देते हैं, मैं आपको एक एंड यूजर के लिए ही सर्व कर रहा हूँ, मैं एक क्लाइंट के लिए सर्व कर रहा हूँ, तो मैं एलआरएस जब भी बोलूंगा, क्योंकि मेरे को एलआरएस का कुछ लेना देना नहीं है, मैं एक शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए एलआरएस रखूंगा, क्योंकि मुझे वो डेटा सेव करके रखना ही नहीं है, कभी ना कभी मुझे वो उड़ाना है, क्योंकि वो मेरा टेस्ट डेटा है, डेवलपमेंट डेटा ही नहीं, तो मैं उसके लिए कॉस्ट ज्यादा दूं क्यों, सॉरी प्रोडक्शन डेटा है ही नहीं, तो उसके लिए कॉस्ट ज्यादा दूं क्यों, राइट। ओके बट बिकॉज ऑफ सेफ्टी पर्पस, कि मेरा कभी कुछ एनीथिंग कुछ कुछ भी हो सकता है, मतलब डिजास्टर कुछ भी हो गया या कोई भी कुछ भी, मतलब कह नहीं सकते कुछ भी हो गया, तो इसलिए एक सॉर्ट ऑफ बैकअप ले रहा हूँ मैं उसको इन टर्म्स ऑफ एलआरएस। तो मेरे ओके माइक्रोसॉफ्ट ये है कि एक कॉपी रखेगा, दो जगह और कॉपी रखेगा, एक पास तो अपने है और दो जगह और रखेगा, तीन जगह टोटल कॉपी रखेगा, सो वी कैन रिट्रीव द डेटा इन ओके आवर फाइन वर्स्ट सिचुएशन। तो जियो रिडंडेंट ऑब्वियसली जीआरएस तभी आएगा जब देयर विल बी टू रीजंस, और जी टू रीजन तभी होंगे जब वो मशीन प्रोडक्शन होंगे, प्रोडक्शन मशीन में यूज करेंगे, राइट। यस क्योंकि ओनली प्रोडक्शन मशीन वी वांट आवर एप्लीकेशन एक्टिव एक्टिव ऑल द टाइम। यस एग्जैक्टली क्योंकि एक्टिव एक्टिव क्यों रहेगा, क्योंकि प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी में भी एक्टिव है, सेकेंडरी में भी एक्टिव है, वो प्रोडक्शन मशीन होता है अपना। तो इसके लिए आप जीआरएस के लिए एग्जांपल दे सकते हो, पीसीआई, हिप्पा, कंप्लायंस और प्रोड मशीन्स, ये ओके सारी पता है प्रोडक्ट मशीन ही कहलाती हैं चारों, बट दीज आर अ डिफरेंट टाइम। ये पीसीआर एंड हिप्पा ये होता है बैंकिंग के लिए, होता है कंप्लायंस के लिए होता है ये सब। तो आपने ओके बोला ना कि बैंकिंग मशीन यूज करते हैं, बैंकिंग एनवायरनमेंट यूज करते हैं, यस दे डू। पर उनको आप जैसे पीसीआई हिप्पा वगैरह बोलोगे, सर्च करोगे, क्योंकि आप ने कभी देखा होगा, कभी कभी जेडी फॉर्म जेडी आता है, तो उसमें ये लोग बोलते हैं कि हैव यू वर्कड इन हिप्पा एनवायरनमेंट, हैव यू वर्कड इन पीसीआई एम्पावरमेंट एनवायरनमेंट, तो यस आई हैव वर्कड इट, तो ऐसे ओके बोलना है आपने को। ओके ओके ठीक है। और हमेशा ये भी एक ऑप्शन वो पूछेगा कि ZRS हर रीजन में हर डेटा सेंटर में अवेलेबल नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल। यस यस ठीक है, जोनल रिडंडेंसी, क्योंकि अवेलेबिलिटी जोन भी और इसी से पहले ये क्वेश्चन भी बनता है, क्योंकि अवेलेबिलिटी जोन भी हर रीजन में अवेलेबल नहीं है, यस यस एग्जैक्टली या पता है। थोड़े करेक्ट। थोड़े हम्म। थोड़े थोड़े रीजन्स में अवेलेबिलिटी रहता है, थोड़े थोड़े रीजन्स में अवेलेबिलिटी नहीं रहता है जेडआरएस। यस नहीं रहता है, हाँ, राइट। अब इसमें अपना एक टर्म आता है, आपने वो सुना होगा कि एक प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन वगैरह यूज करना पड़ता है। यस यस नेमिंग कन्वर्जन्स फॉर द सर्वर्स। नॉट फॉर द सर्वर, फॉर द फुल इन्वायरमेंट, पूल इन्वायरमेंट इट्स ओके नॉट फॉर द सर्वर्स ओनली, फॉर एनवायरनमेंट। आप कुछ भी किसी भी एक चीज का नाम लीजिए, उसके लिए एक नेमिंग कन्वेंशन है। ओके और नेमिंग कन्वेंशन, जैसे अगर मैं आपको, आप खुद से पूछिए मुझसे किस चीज का नेमिंग कन्वेंशन दूं, सब्सक्रिप्शन स्टोरेज रिसोर्स ग्रुप, जिससे
आपको तो पता है, जैसे आप काम कर रहे हो, आपकी टीम काम कर रही है, लेकिन आपको इन दी एंड वो एनवायरनमेंट डिलीवर तो करना क्लाइंट को ही है। क्लाइंट को कुछ नहीं पता उसके बारे में। क्लाइंट को आप पहले बताओगे कि ये नेमिंग कन्वेंशन मैंने क्यों लिया, व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड, For राइट? yeah. और हाँ हाँ पूछिए। Then naming convention was nothing but we have to data center in US. For example, we can have production server in this data centers. We can use US prod 01 ऐसा नेमिंग कन्वर्शन रख सकते हैं। अब सेकेंडरी रीजन में अब एक है अपना डेटा सेंटर में डेवलपमेंट के लिए यूज कर रहे हैं, वी हैव टू यूज ईस्ट यूएस, बोलते बोलते यूएस डाउ 02, ऐसा नेमिंग कन्वर्शन डिपेंड्स अपॉन वो जो जो डेटा सेंटर्स रहते हैं उसके हिसाब से अपन नेमिंग कन्वर्शन देते हैं ना। उसके हिसाब से, जैसे सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं, नेमिंग कन्वेंशन हमें क्या चाहिए, सबसे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन बोलता है मुझे अपना नाम चाहिए, या क्योंकि जैसे एचपी हूं तो मेरा एवरीथिंग शुड स्टार्ट फ्रॉम एचपी, एसपी या तो वो बोलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? तो मोस्टली वो हर किसी में नहीं जाते कि एचपी मेरे को वीएम नेम में भी चाहिए या रिसोर्स ग्रुप में भी चाहिए, सॉरी। तो वो बोलते हैं कि सब्सक्रिप्शन में एटलीस्ट मेरे को एक मतलब ऑर्गेनाइजेशन नेम चाहिए। तो जैसे अगर देखा जाए, तो मैं आपको स्टोरेज अकाउंट की बात करूं, तो स्टोरेज अकाउंट में पहले मैं लूंगा, सबसे पहले क्या होता है, रिसोर्स टाइप, सब्सक्रिप्शन, और देयर इज अ लिमिट आल्सो यस फॉर ईच एंड एवरी। उसके लिए स्टोरेज अकाउंट का बहुत होता है, 64 तक जाता है, रिसोर्स ग्रुप का भी बहुत होता है, बट वर्चुअल मशीन्स के लिए हमारा लिमिट है सिर्फ कितना, आपने देखा होगा विंडोज और लाइनक्स के लिए अब 0 to 64 कैरेक्टर्स हो गया है। ओके बट यहाँ पे जो अपना, जो आप एक होता है अजूर लेवल पे, एक होता है वीएम नेम ओएस लेवल पे। अगर आपने लॉगिन करोगे सर्वर में, तो आप जाओ, एक होता है वीएम नेम, एक होता है होस्ट नेम। पोस्ट में these two आर completely डिफरेंट। बट हम ये क्यों करते हैं कि वीएम नेम हमारा करेक्टर 15 डिजिट्स का, 15 कैरेक्टर्स का ही क्यों होना चाहिए? उन्होंने, माइक्रोसॉफ्ट ने अपन को ये फ्रीक्वेंसी दी है कि 0 to 64 कैरेक्टर्स तक तुम जा सकते हो यूजिंग विंडोज मशीन और लाइनक्स मशीन कोई भी। बट ओके हर क्लाइंट और हर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन भी अपनी मशीन का नाम 15 कैरेक्टर के लिए ही क्यों लिमिट करता है? एनी आइडिया? आप मतलब बताइए, अगर जैसे भी आपको कुछ लगता हो। आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दैट नेमिंग कन्वेंशन। We can ओके use चलो। the company name and the location, then we can use the for example we can use the production, then we can give the naming convention production. For example, Dell company is there, del Dell, then us, then production prod and one. This type of naming conventions company usually, I think so, they can use it. ओके, ऐसा, Hello. तो हाँ हाँ, कैन यू हियर मी? Yes, yes. हाँ, तो ऐसा आपने बोला, इस तरीके का नेमिंग कन्वेंशन यूज कर सकते हैं, बट देयर आर सेवरल टाइप ऑफ रिसोर्सेज इन Azure जो आपको क्रिएट करने हैं एज पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है? Okay. तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील हुआ कि नहीं यहाँ पे ये मिसिंग है, जब भी आप, मैं आप किसी का, किसी एक चीज का मतलब